Very good evening, students. Welcome to the session. In this session, we are going to discuss two important questions and the process of total internal reflection. This video will be slow, थोड़ी slow होगी video. So you can change the speed, the playback speed from the YouTube option. YouTube में आपको playback speed का option मिल जाएगा, वहाँ से you can change the playback speed. थोड़ी वीडियो स्लो रहेगी, उसका रीज़न ये है कि मैं आपको कंप्लीट कंसेप्ट डिटेल में बताऊंगा, सो उसको ध्यान से समझना है। प्लस जो दो क्वेश्चंस हैं दैट आर ऑफ गुड लेवल, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं और ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कोई टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं सेशन। फर्स्टली वी विल डिस्कस व्हाट इज TIR, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय दैट टर्म? पहले एक बार हम उसको रीड कर लें, उसके बाद कंसेप्ट आएगा प्रिज्म वाले क्वेश्चंस का। सो दिस इज TIR एंड TIR मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। शायद आपने टर्म सुनी हो ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर में ये प्रोसेस, ये जो प्रिंसिपल है, दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर। तो पहले एक बार प्रिंसिपल को कंसेप्ट समझ लें, फिर जब ऑप्टिकल फाइबर आएगी वो भी देखेंगे, कोई बात नहीं। So students, let's assume this medium is mu2. This is the refractive index of denser medium mu2, and this is the refractive index mu1 is the refractive index of rarer medium. So I am writing here also, this is rarer medium, R is indicating for rarer medium, and this is denser medium. So students, whenever the ray will travel from denser to rarer medium, as you can see, let's assume this is the ray which is traveling from denser to rarer medium. ये रे इस तरह से जा रही थी, वेट करना, this ray was going in this way, rarer denser to rarer medium. So this is the angle of incidence, ये angle of incidence होगा इसका, the ray, that angle that will made by the ray with the normal. तो normal ये हो गया हमारा perpendicular, this is the normal. So this is angle of incidence. अब ये रे का पाथ कैसा होना चाहिए था? इस रे का पाथ इस तरह से इस साइड होना चाहिए था, straight like I am drawing, but this ray will not follow this path. This ray will bend away from the normal. So this ray will travel, it will, when it will travel from denser to rarer medium, जब भी कोई रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो that will bend away from the normal. So this will be the path that is followed by this ray, and this angle is called angle of refraction, indicated by R. This is angle of refraction, I am repeating. So this is angle of incidence, that is angle of refraction. अब होगा क्या? बेसिकली देयर आर टू कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहले एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देख लें। लेट्स सपोज हमने इस एंगल को इंक्रीज कर दिया, जितना एंगल पहले था, सपोज यहाँ 45 था, हमने इंसिडेंस एंगल को इंक्रीज कर दिया 60। तो लेट्स अज्यूम दिस डायग्राम, हमने थोड़ा आई को इंक्रीज कर दिया, तो आई कितना हो गया, थोड़ा सा वैल्यू आई की और हमने इंक्रीज कर दी। दिस इज द नाउ न्यू आई, न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये चलो हमने ले लिया I1 एंड R1, दिस इज I2, सो दिस इज एंगल I2। अब इस रे को किस तरफ जाना चाहिए था? इन दिस वे, इन दिस वे दिस रे हैज़ टू ट्रेवल। थोड़ा सा अगर हम क्लियरली बनाएं इसको, दीज आर द डॉटेड पॉइंट्स विच आर इंडिकेटिंग द पाथ ऑफ रे, बट दिस रे ऑल्सो बैंड अवे, और ये इस तरफ से इस तरफ चली जाएगी। दिस इज द सेकेंड केस, व्हेन वी इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज।
जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज. सो लेट्स अज्यूम इट एज R2. Now students, as we further increase this angle, okay, let's change the color. As we further increase this color, this angle, like this one, you can see like this one. If we further increase this angle of incidence like this one, this is the angle. So as we increase this angle of incidence, a condition comes when this angle is equal to IC. That is called critical angle. Let's suppose this is I3 equal to C, where C is called the critical angle. तो बच्चे ये I equal to C, I3 equal to C कब आएगा? When this angle will be equal to critical angle, when this critical angle will be equal to when this incidence angle will be equal to critical angle, for the condition when the ray does not go to another medium and also does not come in the same medium. तो ना ही रे दूसरे मीडियम में जाएगी, ना ही रे वापिस अपने मीडियम में आएगी. एट दैट पॉइंट रे विल ट्रैवल अलोंग द लाइन विच इज डिफ्रेंशिएटिंग टू मीडियम. तो रे उस मीडियम का जो डिफ्रेंशिएट करेगी लाइन, जैसे एक सरफेस है, सरफेस के लाइन जैसे ऊपर एयर है नीचे वाटर है, तो लॉन्ग दैट लाइन अगर रिफ्रैक्टेड रे उस लाइन के अलोंग ट्रैवल करती है, लाइक यू कैन सी हेयर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड, दैट एंगल, दैट इंसिडेंट एंगल एट दैट टाइम, द इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल. तो उस कंडीशन में जो इंसिडेंट एंगल होगा दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल. इस केस में रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा बच्चे? इन दिस केस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. तो इस केस में 90 डिग्री एंगल बनेगा आपका रिफ्रैक्शन का. अगर हम फर्दर एंगल को इंक्रीज करते हैं, लेट्स सपोज वन एंड लास्ट केस, लेट्स सपोज वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस नाउ फर्दर, लाइक इन दिस वे. अब यहाँ से रे ट्रेवल कर रही है, ओके, दिस इज द पाथ, एंड if the angle is more than critical angle, like you can see here, if I am taking it as I4 greater than C, means critical incidence angle 4 is greater than critical angle. So for this case, this is angle of incidence, this ray will not go to another medium, it will reflect back in the same medium with the same angle, like angle of reflection here. So this is called total internal reflection. तो total internal reflection का मतलब बच्चे कि उसी टोटली लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाए जिस मीडियम से ट्रैवल कर रही है. देखो इसमें 3-4 केसेस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर दिस डायग्राम, एंड व्हेन I1 R1 थोड़ा सा एंगल है, व्हेन वी इंक्रीज द I2 R2 इंक्रीज हो जाएगा. देन देयर विल बी वन कंडीशन व्हेन I3 इंसिडेंस एंगल 3 विल बी इक्वल टू क्रिटिकल एंगल एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस. इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आज की वीडियो में हम TIR के 2 क्वेश्चंस देखेंगे. देन स्टूडेंट्स, इफ वी फर्दर इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल, यहाँ पे देखो I4 इज मोर देन क्रिटिकल एंगल. सो व्हाट विल हैपन, द रे ऑफ लाइट डज नॉट गो टू अनदर मीडियम, इट विल रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम. तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, पहले तो उन रूल्स को रीड कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे क्वेश्चंस कैसे हैंडल करने हैं. बिकॉज लास्ट टाइम वी हैव सीन इन द ईयर 2020, आई थिंक दिस ईयर, हाँ, in this year final examination CBSE we have seen one question, and that question is approximately containing I think 2 to 3 marks.
So such type of questions you have to do at your own end. In the notes you will see such questions also, and 2 questions I will cover in today's video. Okay, so this is TIR, means when a ray of light does not go to another medium and reflect back in the same medium, when the angle of incidence is more than the critical angle, then that process is called total internal reflection. But there are 2 conditions for TIR. TIR का प्रोसेस तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस भी होंगी, है ना. So there are 2 conditions. First condition is that the ray of light should travel from denser to rarer medium. Here you can see this is denser medium. जो कलर नीचे का कलर मैंने डार्क लिया है. So that means ray of light, first condition is ray of light should travel from denser to the rarer medium. So denser से rarer medium में जाना है. जैसे वाटर से एयर में जा सकता है, ऑयल से एयर में जा सकते हैं, ठीक है. These are the examples. Denser to rarer medium is the first condition, and the second condition for TIR is total internal reflection is the angle of incidence. अब देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो कब रही है, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल for the total internal reflection. So these are the 2 conditions that must be satisfied to occur the total internal reflection process. So this is the total internal reflection when a ray of light travel from one medium to another medium, or you can say denser to rarer medium, and the angle of incidence is more than the critical angle, then the light will not go to another medium, it will reflect back in the same medium. The process is called total internal reflection. Now students, how the question is asked, now you can note down from this screen. Now see how question can be asked. Okay, you can note down this page. If you want to note down, you can note down the diagram of TIR, total internal reflection, and conditions also, and the diagram. This is the important one. You can note down 4 diagrams. You can make 4 or 3 angles. So now we are going to discuss the questions. I hope you will concentrate, and you will see, obviously concentrate on the questions and try to understand that questions. So students, now we are moving to the next question, to the first question. So the question is now on your screen. Okay, question is not visible, so erase everything. Okay, now students, the question is visible, and okay, now the question is that this diagram is given to you, and this is equilateral prism. I am repeating, this prism is equilateral. Okay, this is equilateral prism, so this angle will be 60. Obviously this angle will be also 60, and this angle will be also 60. So it is equilateral triangle or equilateral prism. So students, what is asked in the question? He asked that this is the ray of light which enter from this surface. This is called surface number 1, and this is called surface number 2, and this is called surface number 3. Okay, so you have to find from which surface this ray will emerge out. मतलब कि enter तो कर रही है from surface 1. The ray is entering from surface 1. अब ये रिफ्लेक्ट बैक कहाँ से करेगी, कहाँ से बाहर आएगी प्रिज्म में से, ये हमें फाइंड आउट करना है. इन द क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज √3. स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस वैल्यूज़. ये सारी चीज़ें आप नोट करें, तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे. सो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 विल बी इक्वल टू √3.
Now how to handle this type of question? Firstly, you have to note down the value of all the angles. So this is 60 degree. एक बार नोट कर लें, थोड़ा यूज इसका रहेगा. Here the angle is also 60 degree and here the angle is also 60 degree. Students, you can see the ray is entering perpendicular to surface number 1. तो अगर मैं यहाँ पे कहीं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, इफ आई ड्रॉ अ नॉर्मल हेयर, तो नॉर्मल यहीं पे बनेगा इसी लाइन के ऊपर. एंड व्हेन अ रे मेक्स 0 डिग्री एंगल विद नॉर्मल, तो कोई भी रे जब 0 डिग्री एंगल के साथ नॉर्मल पे जाती है, देन इट विल गो स्ट्रेट. तो कोई भी रे का उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होती. दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन द पाथ ऑफ दिस रे. इसमें कोई चेंज नहीं होगी. बट स्टूडेंट्स, नाउ चलो एक डायग्राम हमने ड्रॉ कर लें. ओके, दिस एंगल इज 60, दिस इज 90, सो दिस एंगल विल बी 30. सो आई होप दिस इज क्लियर. ये तो क्लियर होगा आपको. दिस इज 30 डिग्री, 60 प्लस 30 शुड बी 90, और एक 90 नीचे है, तो 90 प्लस 90 180. सो दिस इज ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल का सम अभी का हो गया 90 प्लस 30 प्लस 60, so it is equal to 180. Now students, see this one. This is the angle made by incident ray with now normal. तो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाया? दिस इज द एंगल. अब ये रे यहाँ से बाहर जाएगी या नहीं जाएगी, ये कौन डिसाइड करेगा? दिस इज द कंसेप्ट बेसिकली. यहीं पे बच्चे हम स्नेल्स लॉ यूज़ करेंगे और कंसेप्ट आपको बताएंगे कि कैसे यहाँ पे रे बाहर जाएगी या नहीं जाएगी. तो यही शॉर्टकट है, और इसके लिए लॉन्ग मेथड भी बन सकता है, बट वी विल यूज़ द शॉर्टकट. हम थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ करेंगे यहाँ पे. तो शॉर्टकट क्या है बच्चे? हम स्नेल का लॉ यूज़ करेंगे. स्नेल्स लॉ वी विल यूज़ हियर. सो स्नेल का लॉ हमें क्या बता रहा है? ही इज सेइंग कि यहाँ पर कंडीशन लगा के देखो. दिस अब देखो, पहले तो ये देखो, दिस एंगल विल बी 90, तो ये हमारा एंगल 30 हो गया. तो दैट मीन्स ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रह गया? 60 डिग्री. अब बच्चे कंसेप्ट क्या है? यू हैव टू फाइंड. आप यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओगे, ठीक है? दैट इज म्यू टू इंटू साइन आई. ठीक है, ध्यान रखना, म्यू टू के साथ जो अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जहाँ पे इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने मल्टीप्लाई करना है म्यू टू इंटू साइन आई. और अब साइन आई कितना है? साइन 60. दिस इज इक्वल टू म्यू वन क्या है? बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. म्यू वन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आउटसाइड. तो म्यू वन बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. दिस इज म्यू वन इंटू साइन आर. सो ये हमारा कंसेप्ट है. दिस इज स्नेल लॉ. अगर आपको नहीं पता तो एक बार आप चेक करें स्नेल लॉ. स्नेल लॉ स्टेट्स दैट, ये सारी स्टेटमेंट जो है स्नेल लॉ से मिलती है हमें. सो दिस इज साइन आर. अब बच्चे म्यू टू की वैल्यू है आपके पास √3. अब साइन 60 इज ऑल्सो इक्वल टू √3 बाय 2. लेट्स, अभी हमने वैल्यू पुट कर दी. इक्वल टू म्यू वन इज एयर. हमने बाहर कंसिडर कर लिया कि एयर है, तो बाहर का मीडियम एयर, इनटू साइन आर. ठीक है, दिस इज साइन आर. अब बच्चे यहाँ पर आपको क्या चेक करना है? दिस साइन आर विल बी इक्वल टू 3/2. अब साइन आर की वैल्यू आ गई आपके पास 3/2. क्या साइन की कोई ऐसी वैल्यू है जो 1 से ग्रेटर हो सके? अब साइन आर है, साइन आर के लिए आर का कोई एंगल है ऐसा जिसमें 3/2 मतलब साइन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो? बट साइन की वैल्यू तो 0 और 1 के बीच में होती है ना. अब यही कंसेप्ट है बच्चे. अगर ये वैल्यू आपकी
साइन की ये वैल्यू जो साइन की जिस तरह से मैंने निकाली है, अगर ये वैल्यू किसी भी सरफेस पे, सपोज रिफ्रैक्शन आपकी रिफ्रैक्शन होनी है यहाँ पे, तो इस सरफेस पे चेक कर लो, अगर यहाँ पे होनी है तो यहाँ पे चेक कर लो। अगर साइन आर की वैल्यू डेफिनाइट आती है, मतलब डिफाइंड हुई जाती है, मतलब जिसका वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सको, जैसे साइन आई आ जाए आपका 4/5, फिर आप आंसर फाइंड कर सकते हो। तो साइन आर की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में रहनी चाहिए। अब यहाँ पर साइन आर की वैल्यू डिफाइन नहीं हो रही, दैट मीन्स यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। यही चीज़ बच्चे आपको सबसे पहले समझनी है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ पर होगी, कहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि इसका क्रिटिकल एंगल निकालना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप √3 से क्रिटिकल एंगल निकालोगे तो मुश्किल हो जाएगा, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, आपको समझने में दिक्कत आएगी, कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो इस कंसेप्ट को लेके चलो साथ में। सबसे अच्छा कंसेप्ट है कि आपने क्या करना है, μ2 इंटू साइन इंसिडेंट इक्वल टू μ1 इंटू साइन आर। तो जहाँ जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंसिडेंट एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और जिस मीडियम में रे जाएगी बाहर जाने के चांसेस हैं उसके साथ उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जैसे यहाँ पर मैंने एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई कर दिया था म्यू आर के साथ। लेकिन अब ये म्यू आर की साइन आर की वैल्यू है, ये अनडिफाइंड आ गई, साइन आर की वैल्यू 3/2 आ गई। दैट मीन्स इस केस में रे बाहर नहीं जाएगी, रे वापस अंदर ही घूम जाएगी। लाइक यहाँ पर ये रे इस तरह से चली जाएगी। अब ये कहाँ जाएगी वो हमें चेक करना है। देखो यहाँ पर अब कंसेप्ट यूज़ हो गया रिफ्लेक्शन का, ठीक है, यहाँ पर कंसेप्ट यूज़ हो गया रिफ्लेक्शन का। एक मिनट बच्चे नोट कर लें। सो अब देखो ये एंगल भी कितना हो गया, रिफ्लेक्शन हो रही है ना, रिफ्लेक्शन का मतलब कि अब रिफ्लेक्शन होगी, मतलब ये एंगल भी कितना होगा 60 का। अब ये एंगल 60 हो गया। इसके बाद जो दूसरा एंगल बचा फर्दर, ये वाला एंगल, दिस विल बी इक्वल टू, अब देखो ये 60 प्लस कितना एंगल होगा 90 बनना है ना, ये दिस विल बी 90, ये एंगल 90 बनना था। दैट मीन्स ये बाकी बचा एंगल कितना होगा 30। अब जब ये एंगल 30 है, ये ऊपर वाला एंगल हमें वैसे ही पता है कि 60 है क्योंकि ये इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो ये एंगल हो गया 30, ये एंगल 60, तो ये एंगल बना मेरा 90 का ऑब्वियसली। अब जब कोई भी रे 90 डिग्री का एंगल बनाती है सरफेस के साथ तो वो अपना पाथ चेंज नहीं करती। दैट मीन्स ये रे यहाँ से इस तरह से बाहर बच्चे निकल जाएगी। दिस इज द सरफेस, सो सरफेस नंबर 3 इज द सरफेस फ्रॉम विच दिस रे विल इमर्ज आउट। तो सरफेस नंबर 3 जो है उस सरफेस से ये रे बाहर निकलेगी। मैंने आपको सिंपल प्रिंसिपल बताया कि जहाँ पर डिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा वहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाओ। अगर साइन आर की वैल्यू डेफिनाइट आ रही है तो बाहर निकाल दो रे, अगर साइन आर की वैल्यू डेफिनाइट नहीं आ रही, डेफिनेट नहीं आ रही, मतलब प्रॉपर वैल्यू नहीं है साइन आर की, ग्रेटर देन 1 आ रही है, देन यू हैव टू मेक देयर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस आपको वहाँ पर करना होगा जहाँ पर रे एंगल नहीं बनाएगी। तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को समझना था। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन को करने के बाद हम वीडियो को ख़त्म करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन लास्ट टाइम CBSE के पेपर में इस बार देखे गए हैं। तो यू कैन नोट डाउन फ्रॉम द स्क्रीन, आप स्क्रीन के ऊपर से इस पूरे क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। इफ़ एनी डाउट इज़ देयर देन यू कैन आस्क। शॉर्टकट मैंने आपको बताया, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री भी यूज़ होगी, थोड़े से आपको एंगल्स भी चेक करने होंगे कि कौन सा एंगल किस तरह से कैसे ज्योमेट्री लगाकर हमें फाइंड करना है। तो बायो वाले स्टूडेंट्स भी थोड़ा सा ध्यान रखें, उनको भी कंसंट्रेट करके क्वेश्चंस समझने हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ और इस क्वेश्चन का आंसर आएगा द रे विल इमर्ज फ्रॉम
द थर्ड सरफेस एज शोन इन फिगर। तो फिगर भी बनानी है आपको क्वेश्चन में, एंड अच्छे से समझाना भी है कि कहाँ पर कौन सी रिफ्रैक्शन होगी, कहाँ पर कौन सी रिफ्लेक्शन होगी। तो सरफेस नंबर 2 पे जो है उस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। सरफेस नंबर 3 के बाहर रे नॉर्मली निकल जाएगी बिकॉज यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का होगा। तो रिफ्रैक्शन तो यहाँ भी नहीं है, रिफ्रैक्शन कहीं नहीं है, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होकर रे परपेंडिकुलर टू द सरफेस बाहर आ रही है। तो इसके साथ ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। नाउ वी हैव टू सी क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज दिस वन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम देखेंगे। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट हो, ही और शी कैन आस्क प्लीज। इससे पहले हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने इस क्वेश्चन को देखा। एंड नाउ वी हैव टू सी दिस क्वेश्चन। आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वी विल एंड द वीडियो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम वीडियो को ख़त्म करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में बोला था वीडियो की स्पीड इंक्रीज़ कर लेना, तो अगर आपने वीडियो की स्पीड इंक्रीज़ नहीं की है देन आप उस वीडियो की स्पीड इंक्रीज़ कर लें, वीडियो स्लो चलेगी थोड़ी। नाउ दिस इज प्रिज्म, रे इज एंटरिंग फ्रॉम फर्स्ट सरफेस। ये फर्स्ट सरफेस है, दिस इज सेकंड सरफेस। चलो थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। दिस इज द सेकंड सरफेस एंड दिस इज द थर्ड सरफेस। So this is first surface, this is second, this is third surface. Ray is entering from first surface and ray is entering perpendicular through the, ray is entering normally through the first surface, and now the angles are given बच्चे। angle this is 30 degree, नोट कर लें भाई, एंगल नहीं लिखे हुए क्वेश्चन में। this angle is 30 degree, this angle is 90 and this angle is obviously 60 plus 30 90, 90 plus 90 180, so this is 60 degree angle. Okay, now see how to solve this question. Refractive index of medium is pending, तो वो भी लिख लें। refractive index of this medium is again √3। ठीक है, refractive index of medium is again √3। तो बच्चे करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन में क्या होगा बेसिकली, दिस इज 60, तो ये हमारा 90 था गिवन। नाउ 90 प्लस 60 150, सो दिस एंगल विल बी 30। ये एंगल बनेगा हमारा 30। वैसे भी ये सिमिलर ट्रायंगल्स लग रही हैं, छोटी और बड़ी ट्रायंगल। सो दिस इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का एंगल हो गया। अब रिफ्रैक्शन देखो यहाँ पे दिस एंगल विल बी, ये हमारा एंगल हो गया इंसिडेंस रे का नॉर्मल के साथ, दिस इज 60 डिग्री। यही हमें समझना है कि इंसिडेंट एंगल कौन सा है। सो इंसिडेंट एंगल ये होगा 60 ज़्यादा, ठीक है। सो 60 इज द इंसिडेंट एंगल। नाउ आउटसाइड मीडियम इज एयर, सो इट्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज 1। नाउ वी हैव टू चेक कि ये रे बाहर जाएगी यहाँ से या नहीं जाएगी। सो दिस इज ऑब्वियसली पिछली बार वाला ही केस है। सो √3 इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। √3 के साथ हमारा साइन आई मल्टीप्लाई होगा। इंसिडेंट रे यहाँ पर अंदर जो एंगल बनाएगी इंसिडेंट रे, उस इंसिडेंट एंगल के साथ आपने अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहाँ से इंसिडेंट रे जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे √3 इंटू साइन 60, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू साइन आर। तो ये फिर से वही केस बन जाएगा, साइन आर इक्वल टू √3/2। तो ये हो गया साइन आर। दिस इज अगेन √3/2 था, तो दिस इज अगेन √3 इंटू √3/2, तो ये बन जाएगा 3/2। दिस वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड। अब साइन आर की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए साइन आर की वैल्यू 3/2 हो। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। तो यहाँ पे होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस तरह से, लेकिन ये कितने एंगल पे होगी, 60 पे। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं, चलो एक स्ट्रेट लाइन करने की कोशिश करते हैं। दिस इज, लेट्स सपोज थोड़ी सी स्ट्रेट करते हैं ट्राई। सो दिस इज, चलो स्ट्रेट तो नहीं बनी,
बट कोशिश की थी। चलो दिस इज़ 60 डिग्री, तो ये नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्ट होकर ये 60 डिग्री का एंगल बनाइए। अब बच्चे क्या है, अब आपको कंसेप्ट करना है यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ। यहाँ पर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे इस तरह से। दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस। अब ये नॉर्मल कितना एंगल बनाएगा, देखो ये 30 और ये 90, ठीक है। अच्छा ये 30 हो गया अंदर का एंगल, ये एंगल हो गया 30। अब 30 + 30 160, तो मतलब ये एंगल कितना हो गया था, ये कंप्लीट एंगल यहाँ से यहाँ तक का एंगल दिस इज इक्वल टू 120। ध्यान से समझे बच्चे, ध्यान से समझे प्लीज़ दोबारा। दिस इज 60 डिग्री, तो ये छोटे वाला एंगल हो जाएगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये ट्रायंगल है, दिस इज द ट्रायंगल 30 प्लस ये भी एंगल 30, 30 + 30 60, तो दिस कंप्लीट एंगल विल बी, ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा 120। 120 में से 90 डिग्री एंगल ये हो गया, तो मतलब ये एंगल कितना बचा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, ये एंगल भी आपका 30 का बचा। सो दिस एंगल इज 30 डिग्री। अब बच्चे कंसेप्ट यहाँ पे है, आपने क्या यूज़ करना है, अब आपने यूज़ करना है साइन आर। पहले तो लिखो 1 × साइन आर, ठीक है। बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, साथ में मल्टीप्लाई साइन आर इक्वल टू √3 × साइन 30। अब हमने इस कंसेप्ट को यूज़ करना है कि √3 के साथ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल और बाहर जाकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो अब अगर इसकी वैल्यू साइन आर की हमें डिफाइंड आ जाती है, मीन्स <1 आ जाती है, तब तो ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बाहर चली जाएगी। बट अगर ये रे इसकी वैल्यू कोई अनडिफाइंड आती है, या अच्छी मतलब वैल्यू ऐसी नहीं आती जो, जैसे यहाँ पे √3 साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो इसकी वैल्यू आ गई साइन आर की √3/2। और हमें पता है साइन आर की एक वैल्यू होती है √3/2, तो दैट मीन्स अब साइन आर की वैल्यू क्या है, दिस इज़ वैलिड। तो अब अगर ये वैल्यू वैलिड है, तो दैट मीन्स अब ये रे बाहर की तरफ जाएगी और रिफ्रैक्ट हो जाएगी। सो दिस इज़, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी, तो इस तरह से रे यहाँ पर जानी चाहिए थी, बट दिस रे विल गो, ये रे इस तरह से नहीं जाएगी क्योंकि इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस तरह से जानी चाहिए थी, बट इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये रे इस तरह से सेकंड सरफेस से बाहर निकलेगी। सो दिस इज़ द मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे CBSE बोर्ड में। आपको रिफ्रैक्शन मीडियम दे देगा, प्रिज्म में रे एंटर करवा देगा, एंड he will give the refractive index, and then he will ask from which surface the ray will emerge out. So these are the two questions that we have to discuss today, and I hope you have noted down the questions. आपने नोट डाउन अच्छे से किए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करो अच्छे से। एंड दिस वाज द इंसिडेंट रे इन द फॉर दिस क्वेश्चन। ये हमारी इंसिडेंट रे थी, एंड दिस इज इमरजेंट रे। और अगर इमरजेंट रे का एंगल देखा जाए तो साइन आर इक्वल टू √3/2, सो इट इज़ 60 डिग्री। तो दैट मीन्स ये जो फाइनली एंगल बनाएगी रे, दिस एंगल विल मेक 60 डिग्री एंगल विद द नॉर्मल। तो ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। किसी बच्चे को डाउट है, ही और शी कैन आस्क 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप वी हैव डिस्कस्ड हियर, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई 2 to 3 questions. I will again try for such type of questions. इसी टाइप के क्वेश्चंस फिर से दोबारा 2-3 किए जाएँ, क्योंकि these type of questions are asked in the examination this year. So thank you so much for watching the questions and watching the video. You can share this video if you find it useful, and please note down these 2 questions in your notebook. Thank you so much.